Hello, my dear children. Very good morning. Today we are going to start the new chapter that is called the financial statement. The chapter name that is financial statement, chapter 21, financial statement. First, we have to know the meaning of financial statement. What is the financial statement? It is a statement prepared by the organization to know the exact financial performance and financial position of the organization. Financial performance and financial position of the organization. The question arises over here, how we can ascertain the financial performance and how can we know the financial strength or financial position of the business. Every businessman wants to know the exact financial performance, whether the organization after the assessment year that is incurred in loss or profit. So the two statements required. One of the statement that is income statement and second one is prepared the balance sheet. With the help of these statements, a businessman can know the exact financial performance and financial position of the organization. In income statement, two statements are prepared. First one, trading account. First one, trading account. Second one, profit and loss account. It's a question for the sake of us. What is trading account? Trading account is prepared to know the exact or gross profit or gross loss of the business organization. Gross profit and gross loss can be known to preparing the ट्रेडिंग अकाउंट. हम ट्रेडिंग अकाउंट जो व्यापारिक खाता है इससे जो है हम बना करके जो हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सकल लाभ हुआ कि सकल हानि कितनी हुई, ये हम जान सकते हैं. मतलब पूरे साल का हमारा प्रदर्शन आर्थिक रूप से ट्रांजैक्शन का क्या रहा, कितना रहा, इसके लिए हम व्यापारिक खाता बनाते हैं. ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम व्यापारिक खाता कहते हैं. इसको बनाने के बाद हम ये पता कर लेते हैं कि हमारा कुल हानि कितनी हुई, कुल नुकसान कितना हुआ एक साल बिजनेस चलने के बाद. अब इसका फॉर्मेट हम आपको दिखाते हैं. फॉर्मेट में देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है ये इस तरह से बनता है. नाउ यू कैन नो द फॉर्मेट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. This one is the
format of trading account. Trading account for the year ending, on the top of the head, for the year ending, whatever the date, on 31st March 2016, 31st March 2012 or 31st December, whatever so on, जो भी हो उसके अनुसार. This one is the column of particulars, name of the accounts, particulars, amount, particulars, amount. This one is the debit and this one is the credit. The format, no, you can know very well, a very easy way. First, to opening stock. Opening stock of the goods. What is the opening stock? Can be mentioned, that is mentioned in debit column, because it, you know it very well, all the assets are debit. All the assets are debit. Then after, to purchase. To purchase, and whatever the purchase return can be minus, less, purchase, return, less, purchase, return, whatever the amount, just we can write over it. Then the next item, to or direct expenses. Direct expenses. Here I would like to explain what are the direct expenses. I will explain, my dear. Now in credit column, by sales. Sales always credit, so we can write by sales. Inside, less sales return. Sales return and whatever the amount. And what is by closing stock? By closing stock. And just we can write the difference between both the column, both the side, to gross profit, CD. Here by gross loss, CD. Now you can see the format of trading account. Opening stock. Just try to know the meaning of the opening stock. Whatever the goods are remain unsold at the end of previous year. जो सामान बेचने से पिछले साल का रह गया है उसे ही अगले साल नेक्स्ट सेशन में हम ओपनिंग स्टॉक करते हैं. और जितना सामान परचेज का मतलब जितना हमने पूरे साल के दौरान खरीदा और जितना हमारा परचेज रिटर्न आया उसे माइनस करने के बाद ये काम. डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस इंगेज्ड in bringing the goods up to the godown.
आर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आप देखेंगे कि माल को गोदाम तक परचेज करके लाने का खर्च और माल बनाने का खर्च, इसे ही हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। माल को गोदाम तक लाने का खर्च जो हुआ, चाहे ढुलाई हुई, चाहे चुंगी देना हुआ, चाहे एक्साइज ड्यूटी देना हुआ, मतलब ट्रांसपोर्ट गोदाम तक आ गया, गोदाम में रखा गया, दुकान में रखा गया, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है, प्रत्यक्ष खर्च होता है। और उसके बाद का जो खर्च होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। सेल हमने कितना किया है, पूरे साल के दौरान जो सेल हुआ, और उस सेल्स रिटर्न जो बिका हुआ माल वापस आया, उसे माइनस करने के बाद उस कॉलम में, और साल के अंत में कितना सामान बेचने से रह गया। At the end of the year, the goods are remain unsold. That is the closing stock. उसे अंतिम रहतिया कहा जाता है और ये प्रारंभिक रहतिया होता है। अब ये देखेंगे, दोनों तरफ का टोटल करेंगे। यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड को एक्सीड करता है तो आपका प्रॉफिट होगा, कुल प्रॉफिट होगा। यदि डेबिट साइड का एक्सीड करता है क्रेडिट साइड को, तो हमारा क्या होगा, कुल सकल हानि होगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें आप, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके तहत हम आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बता रहे हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक है 2,50,000, तो यहां पर हमने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक 2,50,000। अब आप देखेंगे परचेज 7 लाख, हमने यहां पर लिखा 7 लाख परचेज। अब इसमें देखिए परचेज रिटर्न भी दिया है 22,000 का, तो लेस परचेज रिटर्न माइनस 22,000। Just we can mention after deducting the purchase return from the purchase 6,68,000, 6,68,000 after deducting 22,000 from 7 lakhs. Sales return, purchase returns that is given, sales return. First we have to find out the sales 18 lakhs. The amount given about the sales 18 lakhs. 18 lakhs less sales return, 36,000 minus 36,000. Whatever the amount 0, 0, 10 minus 6 is equal to 4, 9 minus 3 is equal to 64, 17,64,000. 17,64,000. Purchase return, sales, wages just we can, मजदूरी दिया तो एक्सपेंस है, तो ये आएगा आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में। आप देखेंगे 2 wages 2,06,000, 2,06,000. Then after carriage inward और आउटवर्ड का मतलब होता है $78,000. 9 minus 2 is equal to 7. 6,78,000 जो आपका है परचेज है,
उसके बाद कैरेज इनवर्ड आंतरिक ढुलाई से कहा जाता है, कैरेज आउटवर्ड को बाह्य ढुलाई कहा जाता है। आंतरिक ढुलाई का मतलब हो गया कि हम माल मंगाने का जो है भाड़ा दे रहे हैं, ढुलाई दे रहे हैं। तो यहां पर टू कैरेज इनवर्ड, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड हो गया आपका कितना 34,000, 34,000। उसके बाद दिया है कैरेज आउटवर्ड, मतलब कैरेज आउटवर्ड का मतलब ये हो गया बेटा कि आउटवर्ड बाह्य ढुलाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है। माल हमारे गोदाम तक आ गया, अब हम बेचने में वो ढुलाई दे रहे हैं, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, उत्पादन खर्च, तो इसका मतलब ये हमारा माल बनाने का खर्च हुआ, तो टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये आपका दिया गया है 2,48,000, 2,48,000। उसके बाद आएंगे गैस, फ्यूल एंड पावर। जब हम फैक्ट्री लगाए हुए हैं तो गैस, फ्यूल और बिजली जो खर्च होगा वो माल बनाने का खर्च है, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। तो यहां पर लिखेंगे टू गैस, फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर। ये हो गया आपका 75,000, 75,000। जिस तरह से जैसे जैसे जो उत्पादन खर्च होंगे या माल बनाने के खर्च होंगे उनको डेबिट कॉलम में, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, इनकम हमेशा क्रेडिट होता है। डाक चार्जेस, डाक चार्जेस का अर्थ हुआ बंदरगाह का खर्च। बंदरगाह पर जो हम खर्च करते हैं, माल मंगाने का इंपोर्ट किए हुए हैं, तो बंदरगाह पर हमने ड्यूटी दिया, कस्टम ड्यूटी हुआ, डाक चार्जेस हुआ, तो ये माल मंगाने का खर्च हुआ, इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंतर्गत आएगा। तो टू डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस, ये कितना है 8,000। Just we can write, we can mention in debit column of the trading account dock charges. Then after factory lighting, फैक्ट्री में जो बिजली खर्च होगा वो माल बनाने का खर्च होगा, तो माल बनाने का खर्च हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर आता है। टू फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री लाइटिंग आपको कंसीडर करना होगा कौन सा खर्च डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। फैक्ट्री लाइटिंग 96,000, 96,000। अब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 6 lakhs, दैट इज गिवन बिलो द क्वेश्चन 6 lakhs. So we can write the closing stock here 6 lakhs in credit column. क्लोजिंग स्टॉक का मतलब हो गया जो सामान बेचने से रह गया। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद का जो प्रोसीजर होता है बेटा वो होता है आपका टोटल करना। Just we can total both the sides on the page, अलग आप टोटल कर लें। ये देखें कि कहां पर ऑफिस लाइटिंग को नहीं रखा जाएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऑफिस लाइटिंग को हमने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंस में आपका फैक्ट्री लाइटिंग, मतलब जो माल बनाने और माल मंगाने का खर्च होता है उसी को हम करते हैं। तो ऑफिस लाइटिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है।
इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का हम टोटल करेंगे। 7 + 6 और 23,64,000, 23,64,000 आपका हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। और डेबिट साइड का टोटल कर लेंगे तो आप देखेंगे, अगर जो ध्यान दें, यदि डेबिट साइड का टोटल यदि कम है क्रेडिट साइड के टोटल से तो हमारा प्रॉफिट होगा, और यदि डेबिट साइड का एक्सीड करता है तो हमारा लॉस होगा। तो आप देखेंगे यहां पर 2,50,000, 6,70,000, I think the credit side will be exceed. So my dear, you can write over here 23,64,000. Difference, that will be the gross profit. To gross profit CD. To gross profit CD, that will be the 7,69,000. 7,69,000. Difference, because of that 2,50,000, 6,78,000, 2,06,000, 34,000, 2,48,000, 75,000, 8,000, 96,000. You can total. That will be the credit side exceed the amount 7,69,000. That will be the gross profit. तो my dear children, इस तरह से आपका जो बनता है अकाउंट, जो बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इस तरह से बनता है। थैंक यू वेरी मच।